Conditional probability. Let A and B are two events associated with the same sample spaces of an experiment. Then the probability of occurrence of the event A when event B has already occurred is called the conditional probability of A. Given that B has occurred, it is denoted by probability of A upon B. Therefore, probability of A upon B is equal to probability of number of cases favorable to A and B over probability of number of cases favorable to B. That is equal to probability of A intersection B upon probability of B. Or probability of B upon A is equal to probability of B intersection A upon probability of A, which is equal to probability of A intersection B upon probability of A, because probability of A intersection B is equal to probability of B intersection A. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रॉपर्टीज क्या है? लेट E and F are the events of sample spaces of an experiment. Therefore, probability of S upon F equal to probability of E upon F equal to 1. If A and B are any two events of sample space S and F is an event of S such that probability of F is not equal to 0, therefore probability of A union B upon F equal to probability of A upon F plus probability of B upon F minus probability of A intersection B upon F, and probability of A complement upon B is equal to 1 minus probability of A upon B. तो ये इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है. तो इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे. एक्सरसाइज 13.1. Given that E and F are events such that probability of E is equal to 0.6, probability of F is equal to 0.3, and probability of E intersection F equal to 0.2. Find probability of E upon F and probability of F upon E. Since E and F are two events such that probability of E equal to 0.6, probability of F equal to 0.3, and probability of E intersection F equal to 0.2. तो अब हमें probability of E intersection F निकालना है. तो ये किसके बराबर होता है? ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना है? 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना है? 0.3. तो ये होगा 2/10 अपॉन 3/10, विच इज इक्वल टू 2/10 इंटू 10/3, विच इज इक्वल टू 2/3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F कितनी हो गई? 2/3. और प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E. अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F या प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E, ये एक ही चीज़ है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना है? 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E 0.6. तो ये हो गया हमारे पास 2/10 अपॉन 6/10, विच इज इक्वल टू 2/10 इंटू 10/6. 10 और 10 कैंसल, 2 1 are 2, 3 2 are 6, which is equal to 1/3.
तो हमारे पास दोनों पार्ट आ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ भी आ गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A upon B. So probability of A upon B is equal to probability of A intersection B upon probability of B, which is equal to 0.32 upon 0.5, which is equal to 32 upon 100, 5 upon 10, which is equal to 32 upon 100 into 10 upon 5. Which is equal to 16 upon 25. Question number 3, probability of A equal to 0.8, probability of B equal to 0.5, probability of B upon A equal to 0.4. Find probability of intersection B, probability of A upon B, and probability of A union B. Part first. Know that probability of B upon A, क्योंकि ये भी हमें दी हुई है और probability of A भी हमें दी है, is equal to probability of B intersection A upon probability of A, which is equal to probability of A intersection B upon probability of A. तो probability of B upon A कितना है? 8. Probability of B upon A 0.4 equal to probability of A intersection B upon probability of A 0.8. So therefore probability of A intersection B equal to, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4 into 0.8, which is equal to 4 upon 10 into 8 upon 10, which is equal to 32 upon 100. तो ये हो जाएगी probability of A intersection B equal to 0.32. ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट, probability of A upon B, probability of A intersection B upon probability of B. तो probability of A intersection B जो है ये 0.32 upon probability of B 0.5, तो ये आ गया हमारे पास 32 upon 100 upon 5 upon 10, which is equal to 32 upon 100 into 10 upon 5. तो ये आ गई हमारे पास probability of A upon B is equal to 16 2s are 32 and 5 2s are 10. 16 upon 5 into 5 हो गया 25. थर्ड पार्ट है probability of A union B. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 0.32 विच इज इक्वल टू 8/10 प्लस 5/10 माइनस 32/100 विच इज इक्वल टू 100। एलसीएम हो गया 10 इंटू 8 80 प्लस 10 इंटू 5 50 माइनस 32 विच इज इक्वल टू 130 माइनस 32/100 विच इज इक्वल टू 98/100 4 49 2s and 52s 49/50। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो आ गई 49/50। Question number 4, twice probability of A is equal to probability of B is equal to 5/13 and probability of A upon B is equal to 2/5. Find probability of A union B. Therefore, probability of A is equal to 5/13 into 1/2 which is equal to 5/26 and probability of B is equal to 5/30। तो probability of A हमारे पास कितनी होगी 5/26 होगी क्योंकि ये जो 2 है ये इधर जाके 1/2 हो गया और probability of B होगी 5/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी उसने दी है 2/5। अब हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी कितना है 2/5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/13। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इनकी मल्टीप्लिकेशन पे लगी 2/5 इंटू 5/13। तो 5 और 5 कैंसल तो ये हमारे पास आ गया 2/30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 2/30 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी probability of A union B is equal to probability of E plus probability of B minus probability of A intersection B। तो यहाँ पर probability of A कितना है probability of A 5/26 plus probability of B 5/13 minus probability of intersection B 2/13। तो यहाँ पर एलसीएम जो आ गया विच इज इक्वल टू 26 5 प्लस 13 2s are 26 5 2s are 10
-13 2 ज़ा 26, 2 2 ज़ा 4। तो ये हो गया हमारे पास विच इज इक्वल टू 15 - 4 अपॉन 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 15 - 4 11 अपॉन 26। तो इस तरीके से उसने हमें क्वेश्चन में दिया था ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 13। तो ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये 5 अपॉन 13 है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी 5 अपॉन 13 इंटू 1 अपॉन 2। और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी 5 अपॉन 13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी 2 अपॉन 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6 अपॉन 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 11। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। तो प्लीज़ ट्राई योरसेल्फ, इसको आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं निकलेगा आपसे तो फिर मैं इसकी वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट फर्स्ट, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times वेयर E is the wind head down third toss and F is the wind heads down first 2 tosses. Find the probability of E upon F. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया उसने कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F जो है वो फाइंड आउट करनी है और E जो इवेंट है वो हेड डाउन थर्ड टॉस है और F जो इवेंट है हेड डाउन फर्स्ट 2 टॉसेस है व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times। तो इसमें क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकालेंगे व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times। तो देयरफॉर सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times एस इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये मैंने कॉइन को एक बार, ये ट्री डायग्राम है, कॉइन को एक बार टॉस किया तो एच और टी आ गया, फिर 2 बार किया तो एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, फिर एक बार और किया हमने तो एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है और ये थर्ड प्लेस है। तो क्वेश्चन में क्या दिया उसने, ई इज द विंड हेड डाउन थर्ड टॉस। तो ई वो विंड है जो थर्ड टॉस में, यानी कि ये यहाँ पर हेड होगा, यहाँ पर हेड होगा, यहाँ पर हेड होगा और यहाँ पर हेड होगा, यानी कि थर्ड टॉस में जो हेड होगा वो ई इवेंट है। तो हमने यहाँ पर एस ले लिया, सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड एस हमारे पास 8 आ गई और ई इज द इवेंट हेड डाउन थर्ड टॉस। तो क्या आ गया वो देखिए, यहाँ से एच 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 आ गया, एच टी एच आ गया और टी एच एच आ गया और टी टी एच आ गया। तो एन ई हो गया 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया 4 अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। नेक्स्ट क्या है, एफ इज द इवेंट हेड डाउन फर्स्ट 2 टॉसेस और एफ जो इवेंट है वो क्या है, हेड डाउन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो एक ये है हेड डाउन फर्स्ट 2 टॉसेस, ये वाली जो इवेंट है हेड डाउन फर्स्ट 2 टॉसेस ये, और एक ये है हेड डाउन फर्स्ट 2 टॉसेस। बाकी आप देखिए जितनी भी इवेंट्स हैं उनमें फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास एच 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 एंड एच एच टी। एन एफ 2 हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गई एन एफ अपॉन एन एस 2 अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन 4। अब हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। अब देखिए जरा ई और एफ में कॉमन क्या है, एच एच एच, एक ही इवेंट कॉमन है एच एच एच।
तो ई इंटरसेक्शन एफ आ गया HHH, एन ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस इक्वल टू 1/8। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of E upon F equal to probability of E intersection F upon probability of F equal to 1/8 upon 1/4. तो 1/8 into 4/1, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो हमारे पास आ गया ये 1/2। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड probability of E upon F when a coin is tossed 3 times and E is the wind head down third toss and F is the wind head down first 2 tosses. Verse 7, 2 coins are tossed once. E is the wind. What first? E is the wind. Tail bears on one coin and F is the wind. One coin shows head. Find the probability of E upon F. Sample space when two coins are tossed once. S equal to क्या होगा, ये देखिए ट्री डायग्राम, एक बार हम टॉस करेंगे तो H और टेल आएगा। अब दूसरी बार करते हैं तो क्या आता है HH HT TH एंड TT। तो सिंपल स्पेस क्या हो गया, HH HT TH और TT। एंड एस कितना हो गया, ये हो गया 4। अब क्या क्वेश्चन है, E is the wind, tail appears on one coin. E is the wind, tail appears on one coin। तो E क्या हो गया, टेल appears on one coin, एक काइन में टेल आता है तो वो HT और TH। एंड E कितना हो गया 2, probability of E and E upon NS 2/4 1/2 and F is the wind, क्या है, F is the wind, F is the wind, one coin shows head, one coin shows head, एक कॉइन हेड देता है तो वो भी यहाँ यही हो गया HT और TH, TH NF 2, therefore probability of F NF upon NS 2/4 equal to 1/2। अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो NE पहले हम लिखेंगे E इंटरसेक्शन F। E और F में क्या कॉमन है, E ये है HT TH और F भी यही है HT TH। तो
एंड ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 2, तो therefore probability of E intersection F 2/4, that is 1/2. So probability of E upon F equal to probability of E intersection F upon probability of F. Which is equal to probability of E intersection F 1/2 upon probability of F 1/2, तो ये which is equal to 1. तो probability of E upon F is equal to probability of E intersection F upon probability of F, which is equal to 1. तो ये 1 के बराबर